Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. We have started the chapter Excretory Products and their Elimination. So far, we have discussed about the mode of excretion in different animals, the working of human excretory system, and how urinary system helps in the removal of the waste out of the human body. Today, we are going to start another very important topic of this chapter, which is counter current mechanism in kidney. So let's start. Now, first of all, you must understand what is the meaning of counter current system. So, it is a system in which the inflow runs parallel to or counter to and in close proximity to the outflow for some distance. Now, there are conditions to be fulfilled for this counter current mechanism, that is, the two tubes should be in parallel in which the counter current is running. It should be parallel. The movement should be in opposite direction, and the two tubes which have this counter current should be in close proximity and they should have selectively permeable membranes. Now, the examples of counter current mechanism are not only present in our kidney, but it is also in the maintenance of air temperature in a furnace with the help of counter current. Then it also helps in the penguin. It helps the penguin to stand on ice for a long time with the help of its flippers, which help in the exchange of the heat with the help of the counter current system. The counter current mechanism in kidney is dependent on the maintenance of a gradient of increasing osmolality along the medullary pyramids. We have discussed the structure of kidneys and we know that the kidneys possess these medullary pyramids. Now, where there is a gradient is there of increasing osmolality, and that helps in this counter current mechanism. Now, the counter current mechanism occurs between the two loops, that is the two tubes that we were talking, which are to be present, जिनको होना ही चाहिए, जिनके बीच में काउंटर करंट चलेगा. और वो यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी की जब हम बात करते हैं तो वो दो ट्यूब्स कौन सी हैं? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा. ये दो वो ट्यूब्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं और ये आपस में काउंटर करंट है. काउंटर करंट का मतलब है एक दूसरे के साथ ऑपोजिट फ्लो, इनका जो फ्लो है, जो इनका फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है या जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट. द काउंटर करंट जो है एक लॉन्ग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो एस्टैब्लिश कर देता है एक वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जिसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं. ऐसे ही वैसा रेक्टा के अंदर ब्लड और जो रीनल मेडुला है, इनके बीच में काउंटर करंट एक्सचेंजर एक काम करता है. ऐसे ही जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, आप कलेक्टिंग डक्ट्स पता है आपकी, कलेक्टिंग डक्ट्स वो हैं जो कि बाकी नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट को लेती हैं यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में. तो ये जो ग्रेडियंट है वहां पर भी वेसोप्रेसिन हार्मोन की हेल्प से, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं, उनकी हेल्प से ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस का काम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन होता है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किडनीज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किडनीज नॉट ओनली फंक्शन इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बट दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये वही है कि यहाँ कलेक्टिंग डक्ट जो है, that also is helping in maintaining the osmotic equilibrium in the body. Then collectively this entire functional system, तो ये पूरा का पूरा जो functional system है कि loop of Henle में एक osmotic gradient maintain हो रहा है और इसी तरह से एक osmotic gradient जो है vasa recta के बीच में हो रहा है between renal medulla. तो ये counter current exchanger और ये equilibrating device जो कि present है collecting duct में, तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं counter current system. So let's talk about the counter current system. थ्योरेटिकली पढ़ने से बहुत अच्छा है कि आप लोग इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, बिकॉज डायग्रामेटिकली ये बहुत ही इजीली और बहुत ही क्लियरली समझ में आता है. तो बेटे ये डायग्राम को देखते रहिए और बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तो ये है हमारा जो हम बात कर रहे हैं, दिस नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में ये जो अपर पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बोमेन्स कैप्सूल, इफ यू रिमेंबर, एंड इट हैज दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. और इसी के आगे जो लोअर पार्ट है टिब्यूल का, दिस विल बी कॉल्ड एज पीसीटी, which is the proximal convoluted tubule, and then we have this loop of Henle, this U-shaped or hairpin like structure called as the loop of Henle, and then we have this DCT, which we call as the distal convoluted tubule,
and which is pouring its filtrate into what we call as the collecting duct. तो ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. अब अगर आप याद करेंगे थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कॉर्टिकल और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ही प्रेजेंट रहते हैं कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी का अपर पार्ट, जो ये अपर पार्ट है पीसीटी डीसीटी और बोमेन्स कैप्सूल, ये तो रहता है कॉर्टेक्स रीजन में, लेकिन इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो डिप करता है मेडुला के अंदर. सो यू कैन लुक हियर. सो अब यहां से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन से नेफ्रॉन की बात की जा रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात हो रही थी. तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेनली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो बेसिकली हमारी बॉडी में से फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं चीजों को, लेकिन जो ऑस्मोलैरिटी बैलेंस मेंटेन करने का काम है मेनली वो थ्रू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है. तो यहाँ जो हम नेफ्रॉन आप देख रहे हैं, दिस इज जक्स्टा मेडुलरी, जिसका अपर पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, जबकि जो लोअर पार्ट है वो डिप कर रहा है इनटू द मेडुला रीजन. चलिए, तो इससे आगे बात करते हैं. अब तो इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये जो ट्यूब एक और देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द कैपिलरी नोन एज द वासा रेक्टा. ये वासा रेक्टा है, और ये वासा रेक्टा और दिस लूप ऑफ हेनले, यही दोनों है जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि दोनों में काउंटर करंट चलता है. तो काउंटर करंट को बड़ी इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब क्यों, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब, और यहां से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे जो आपका ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ है, जबकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो काउंटर करंट, यहाँ पर एक दूसरे के साथ जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनका फ्लो क्या रहेगा, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. So this is what we know, which we call as this counter current mechanism. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए सब लोग. Here we are saying कि ये दो आपने बात किया था अफरेंट और इफरेंट. इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था अफरेंट आर्टरियोल मतलब ब्लड लेकर आने वाला, आ मींस आफ्रेंट, और ई एग्जिट से याद रखना है इफरेंट, जो लेके जा रहा है वो इफरेंट. तो अब ये जो अफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आ रहा है, तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 300. तो ये 300 वाला ब्लड जो है वो यहाँ पहुंच रहा है. तो यहाँ पर ये 300 वाला है, क्योंकि अब यहाँ से मेनली क्या हो रहा है, आपको पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही उन्होंने फिल्टर कर दिया, तो उसका लगभग ऑस्मोलैरिटी भी कितनी रहेगी, ब्लड की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहेगी. तो यहाँ पर ये 300 आपके पास ऑस्मोलैरिटी वाला जो फिल्ट्रेट बना है. अब ये जैसे जैसे मूव ऑन करेगा, ये फिल्ट्रेट फ्रॉम पीसीटी से आगे आगे मूव करना शुरू करेगा इनटू द लूप ऑफ हेनले. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से यहाँ से क्या होता जा रहा है, वाटर का रिमूवल होता जा रहा है. यहाँ वाटर का रिमूवल होने का बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर एक्वापोरेंस प्रेजेंट है. ये जो मेम्ब्रेन है ऑफ दिस पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब की जो आपकी लूप ऑफ हेनले की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरेंस, जिसकी वजह से वो वाटर को लूज करता रहता है. अब जैसे जैसे वाटर लूज होता रहेगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको एक टर्म दूंगी कि यहाँ पर पहले सॉल्यूशन है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का मतलब क्या रहा, ब्लड का और फिल्ट्रेट का दोनों का ऑस्मोलैरिटी सेम है, तो ये सॉल्यूशन है दिस इज आइसोटोनिक. जैसे जैसे वाटर का रिमूवल होता जा रहा है, आप देख रहे हैं ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है क्यों, क्योंकि हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होता जा रहा है, दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक. अब सॉल्यूशन हो चुका है आपका हाइपरटोनिक, क्यों, क्योंकि पानी निकल चुका है, सॉल्यूट ज्यादा हो चुका है. अब जैसे जैसे ये आगे ऊपर वापस असेंडिंग लिम्ब में जाता जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पेशली मेंशन किया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये जितना वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये थ्रू स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो रहा है, एक्वापोरेंस के थ्रू हो रहा है, तो पैसिवली हो रहा है. लेकिन यहाँ पर जैसे असेंडिंग लिम्ब में मूव करेगा फिल्ट्रेट, वैसे वैसे एक्टिवली सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया जाएगा एक्टिव प्रोसेस से, मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करके. और आप फिर देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता जा रहा है, वापस यहाँ से हाइपरटोनिक से वापस सॉल्यूशन धीरे 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 क्या होता जा रहा है. आप यहाँ पर देखेंगे तो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक यहाँ पर आपका हो चुका है. देखिए यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है आपकी, आप देखेंगे तो कैसी हो चुकी है, आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर कैसे हो चुकी है, कम हो चुकी है एज कंपेयर टू ब्लड.
तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो चुका है, हाइपोटोनिक हो चुका है। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है आगे जब ये मूव ऑन करेगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, तो जैसे जैसे ये मूव ऑन करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट अगेन इज परमिएबल टू यूरिया, तो यूरिया भी वापस क्या करेगा, उसको वापस इट विल बी सेंट इनटू द दिस मेडुलरी रीजन। अब ये जो मेडुलरी रीजन बिटवीन, ये जो बीच में आपको मेडुलरी रीजन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो है बीच में, जो ये स्ट्रक्चर है बीच में सारा का सारा जितना ये प्लेस आपको नजर आ रहा है, दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज कर रहा है, जहां से वो कहां जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द दिस नेफ्रॉन। अब यहां से जो यूरिया, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी में भी पॉइंट मेंशन्ड है, उसको जरूर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो मेन आपका ऑस्मोलालिटी जो है मेंटेन करने का, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। अब आप यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और यूरिया ये वो दो आपके सब्सटेंसेस हैं जो कि पूरे यहाँ पर आपके किडनीज के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने में, आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर अब आप यही चीज को हम काउंटर करंट के साथ देखते हैं। काउंटर करंट वैसा को आप इमेजिन करें कि वैसा इज रनिंग पैरेलल, अब ये चल रही है बिल्कुल पैरेलल इसके साथ। अब यहाँ पर हमने इसको सेपरेटली दिखा रखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड, लेकिन एक्चुअली ये क्या कर रही है, बिल्कुल इसके साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है। सो अब ये जब इसके पैरेलल चलेगी और बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होगी, तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता जाएगा, धीरे 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 क्या होता जा रहा है, इसकी भी ऑस्मोलालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। लुक एट दिस, द ऑस्मोलालिटी इज इंक्रीजिंग, और ये भी क्या कर रही है, वाटर को लूज कर रही है, सोडियम क्लोराइड को इनटेक कर रही है। लेकिन अगर आप दूसरी लिम्ब को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है यहाँ पर और ये वेन तक जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वापस यहाँ पर ऑस्मोलालिटी जो ये हाइपरटोनिक होता जा रहा है, और फिर यही सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक्सचेंज होता जा रहा है बार बार यहाँ पर सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर वापस ऑस्मोलालिटी जो है वो फिर वापस वही आइसोटोनिक पर पहुंच रही है। तो ये जो आइसोटोनिक मेंटेन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जरूरी है कि सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन किया जाए। और यही चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है काउंटर करंट का, इसका पूरा पर्पस ही क्या है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। लुक एट दिस नाउ, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो ये यूरिया है ये पीसीटी से भी रिमूव किया जा रहा है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, और सोडियम आयंस और वाटर और क्लोराइड आयंस भी रिमूव हो रहे हैं पैसिवली। और इसी तरह से आगे आगे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, और इसी तरह से यहाँ पर ये आपका है डीसीटी, तो डीसीटी भी आगे जैसे मूव ऑन करेगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ से जो आपका यूरिया का रिमूवल हो रहा है, तो यूरिया जो ये रिमूव हो रहा है ये वापस कहाँ आता जाएगा, इट विल कम बैक अगेन टू द नेफ्रॉन के बीच में वापस एंटर करता रहेगा। सो डिसेंडिंग जो वैसा रखता है आपका, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है वाटर को लूज और सॉल्यूट को गेन कर रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो डिसेंडिंग वॉसा रेक्टा है, डिसेंडिंग मतलब जिसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ चल रहा है, उसमें वाटर का लॉस हो रहा है और सॉल्यूट का गेन हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है असेंडिंग वॉसा रेक्टा के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर का गेन हो रहा है और सॉल्यूट्स का लॉस हो रहा है। Now concentrating के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। Ascending limb of loop of Henle has a low permeability of water but actively reabsorbs the sodium ions. The descending limb जो है उसमें हाई परमिएबिलिटी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, और लो परमिएबिलिटी है सॉल्ट्स के लिए। जो डिस्टल टिब्यूल है एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये भी एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं सोडियम आयंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि काम करता है इन द वाटर स्कैर्सिटी, जब भी हमारी बॉडी में वाटर की स्कैर्सिटी होती है तो ये एडीएच काम करता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन करेंगे। Now descending and thin ascending limbs of the loop of Henle are permeable to urea. The thick ascending limb and cortical part of collecting duct have low permeability to urea, and the medullary part of the collecting duct has a high permeability of urea that can be increased by the ADH, antidiuretic hormone. So solute gradient is created by the LOH. जो मेन काम है वो कौन कर रहा है, लूप ऑफ हेनले कर रहा है, जो कि सॉल्यूट का डिसिपेशन को डिक्रीज कर देता है। डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्यूट जो है डिफ्यूज कर जाता है इनटू वेसल्स और सॉल्यूट सर्कुलेट करता रहता है। वाटर जो है डिसेंडिंग लिम्ब में से डिफ्यूज आउट कर जाता है और असेंडिंग लिम्ब में मूव ऑन कर जाता है,
और सॉल्यूट जो है वो रिसर्कुलेट करते रहते हैं मेडुला के अंदर, और इससे वाटर का बैलेंस जो है हमारी बॉडी में मेंटेन्ड रहता है।